Bombay, Mumbai, or the city of dreams. The cosmopolitan city of Mumbai goes by different names. One look at its local train stations can tell you how the city welcomes people from every corner of the country to a sea of vast opportunities. Whether privileged or marginalized, educated or uneducated, skilled or unskilled, everyone is drawn to the city in pursuit of their dreams. But I wonder if the city truly treats everyone the same and offers them an equal chance to live a life they desire. Or are some people more equal than others? गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं। गरीबों अपना काम कर कर के परेशान हो जाए मगर कुछ नहीं हो। जब छोटे थे हम लोग ना तभी बम्बई आए हम लोग, मेरे मम्मी पापा लेके आए थे मुझे। ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरे, ये जैसे ये 14 साल का है ना मेरा लड़का, उतनी रही होंगी मैं। मुंबई मुझे अच्छा लगता है। मैं बिहार जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या अच्छा लगता है मुंबई के बारे में? वही अच्छा लगता है, जब से रह गई तो बचपन से रह गई तो अच्छा ही लगेगा ना। अब थोड़ी ना ये गाँव जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं गोरखपुर भी जाती तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, ज़्यादा महीना तक। यहाँ की याद आती है ना मुझे बम्बई की। कब पहुँचूँ बम्बई, कब जाऊँ बम्बई, कब माँ बाप का शक्ल देखूँ, कब ये वो। 40-year-old Jahana is a resident of Mumbai, a city which is home to more than 20 million people. Migrant workers and laborers who find themselves caught between jobless villages and resourcefully overwhelmed cities make up large part of this huge population. बम्बई का सपने की नगरी बोलते हैं, सुनी हूँ मैं। कोई गांव से आता है, नौकरी के लिए आता है, सब करने के लिए आता है। अपना कोई जरी का कारखाना डालने आता है, कोई बाहर का काम करने आता है। कुछ ना कुछ तो करते ही है इंसान, चाहे कोई भी काम रहने दो। बहुत मेहनत करते हैं लोग। बहुत मेहनत करते हैं पूरा दिन। हम लोग भी जब से शादी किए ना मैडम, जब से मैं मेहनत करते आई हूँ। ये पूरा संजय नगर बोला जाता है इसको, संजय नगर, बंजार चाल। शुरू में हम लोग आए थे तो इधर ही रहते थे हम लोग, आगे रहते थे, उधर आगे गली में रहते थे हम लोग। In the past few decades, extreme poverty has fallen globally, but cities are increasingly divided into richer and poorer areas. The number of people living in so-called slums is estimated at 1 in every 3 or 4 people living in cities, and in Mumbai, that number is nearly 50%. Yes, you heard it right. 1 in every 2 people in Mumbai lives in a slum. But the important question is, what leads to the slumification of our cities? Upon independence, India had pledged to be a socialist republic, which means the government had taken upon itself the exclusive responsibility of promoting social welfare projects, including affordable housing or social housing. Now, come 1991, the year of liberalization, the government dumps that responsibility and role. That, to my mind, has been the major disaster, leading to a state that we are now in, where housing crisis has hit the roof, where slumification of cities has begun to threaten our quality of life. Eyesores to the rich and middle class living in fancy high-rises, slums are certainly seen apart from city life. Yet, the poor neighborhood and its residents are integral to city life. They are often the toilers that keep the city running, enabling its buses and taxis to move, its factories and its shops to run, its cafes and its restaurants to remain clean, and its markets and roadside stalls to keep going. They often do the work of urban sanitation, cleaning streets, collecting garbage, recycling waste, maintaining toilets. And as most of us have felt during COVID, the cities grind to a messy halt without these workers.
गांव की हालत से, गांव से ऐसे आए थे कि मेरे पास भाड़ा नहीं था और मैं बच्चे के साथ आया था। 4 दिन स्टेशन पर गोरा था मैं, 4 दिन। तो ये मोहल्ले में आ गए हम लोग, तो रूम लिया बेड डिपोजी का। फिर वहाँ से हम लोग खाली उली किए। फिर ये रूम हम लोग 2000 में लिए थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे। ये रूम 2000 में लिए थे हम लोग, खाली जगह। इतना खड्डा था ये रूम में, खड्डा था तो हम ही लोग भरनी करने वाले, बनाने वाले सब हम ही लोग थे। मेरे भाई बहन सब हम लोग भरनी किए, बनाए, मेरे अब्बा अम्मी। पानी इतना भरता था इसके अंदर, हम लोग भर्ती करते 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 इतना भरनी किया। पूरे घर में बाकरा बना देते, उसी वक्त खाना पकाना होता था। कुछ भी करके इंसान गुजारा करता है। Slums smell of injustice. Stinking community toilets, drains clogged with garbage, narrow dark alleyways with houses inches away from each other. These are spaces that lack basic sanitation and urban living conditions. पूरी बाथरूम रोड पे सब बाथरूम है, जिसके जिसके घर में है उन लोग अपना घर में जाते। ये बच्चे ना, मेरे लड़का सब खारी में जाते, बाथरूम में नहीं जाते। खाली मैं जाती हूँ, मेरी बेटी जाती है रोज का 3 रुपया दे के। Over 40% of homes in Mumbai do not have a toilet. The 50% population of Mumbai living in slums occupy less than 1/4 of the city's total land area. The poor neighborhoods typically receive less than half the average water supply of wealthy areas of the city. जब है ना पानी का ही दिक्कत होता था, कपड़े उपड़े वही हफ्ता दिन में 2 हफ्ता में ऐसा धोते थे। साफ सफाई ज़्यादा हम लोग करते नहीं थे, पानी इतना लंबे लंबे से ढो के लाना पड़ता था, क्या करेंगे। अभी तो काम पे से आओ तो थक जाता है इंसान, थक मने रहते, कहाँ से पानी भर पाएगा इंसान। कहाँ से ढो ढो के लाते थे पानी, पहले नल नहीं था तो। बाप रे, इतना बैगन बारी, गोंडी, तो कहाँ से लाते थे साइकिल पे सब। क्या करेंगे, मैं लाना ही पड़ेगा, पानी पीने का है तो लाना पड़ेगा कहाँ से। ये रूम बिक गया है ना, तो दूसरा आदमी लिया है ना, तो वो लगाया है नल। बाहर है लगाया ले रूम वाला। मेरे बाप के भी है, 2 नल है मेरे बाप का। हमारा तो ड्राम बाहर ही रहता है, हम ड्राम भर लेते तो 1 हफ्ता चलता हमारा। The mushrooming wealthy tower blocks and shopping malls draw in huge amounts of water, while the informal labor force that cleans and maintains these spaces is denied the basic services at home. After the 1896 plague in Mumbai, it was a fairly common thing in that period to actually go into a particular area, say in Mumbai, where people were living around, say, mills, working class, take over that land, evict people, create these beautiful, healthful environments, which also were very good real estate values, which meant people were displaced and new slums were formed. This unjust distribution of resources and hazards like water and sanitation has shown to increase inequality, poverty, risk, health and well-being, curtailing the very right to city life for the poor. Jahana works as a housemaid in lavish homes of Bandra Kurla. Her abusive alcoholic husband barely contributes to the household income, making her the sole breadwinner in her family. She earns a monthly wage of 5,000 rupees, which makes living in Mumbai a desperate survival. मुझे बाबा मेरे बच्चे लोग बोल देते हैं मैम कि तुम लोग मेरे लिए करते नहीं हो कुछ, इतना तुम लोग कमाते हो नहीं करते हो। मैं कितना कमाती हूँ, 5,000 में क्या होता है, कुछ होता है 5,000 में? रूम के भाड़े में, लाइट बिल में, पानी में चले जाता है, क्या बचेगा। ये आजू बाजू का उधारी पुधारी रहता है, दुकान का उधारी रहता है, वो सब देना पड़ता मैम, कहाँ से देने का।
6 माला दिख रहे हैं ना, वो 6 माले थे। अभी पहले माले पे जाते हैं। हम लोग के घर में तो फ्रिज भी नहीं है, कुछ नहीं है हम लोग के घर में, कुछ नहीं है हम लोग के घर में, बर्तन के सिवा और कुछ है ही नहीं हम लोग के घर में। लगता है कि उसके बच्चे लोग की कैसी जिंदगी जी रहे उन लोग, हम लोग अपने बच्चे के लिए कैसी जिंदगी जी रहे। उसके बच्चे लोग को जिंदगी है ना, वैसा हमारे बच्चे लोग को कोई नहीं दे पाएगा जिंदगी, ना मैं दे पाऊंगी मेरे बच्चे लोग को, ऐसा है, नहीं दे पाऊंगी मैडम। सोहेल रेशमा। यहाँ पे फिर बीमारियां बहुत होता रहता होगा बच्चों। यहाँ गंदगी की वजह से होता मैम, गंदगी रहती है, सांस फूलती है, फसली में दर्द, कलेजे में दर्द। इधर कोई आता ही नहीं साफ सफाई करने, गटर भर जा रहा तो नहीं आ रहे साफ करने कोई। और वहाँ सब होता है जहाँ मैं काम पे जाती हूँ, वहाँ एकदम साफ सफाई रहता है उधर। और वो लोग बोलते भी तुम लोग साफ सफाई वाले है ही नहीं हो। वो जहाँ काम करती ना, मैं बोली क्या खाला तुम लोग ऐसा बोलते हो, साफ सफाई वाले नहीं है, बिकॉज साफ सफाई के हम लोग साफ सफाई करते। अभी देखे वो छोटी वाली का आई थी जो अभी मेरी लड़की, उसके कल से फसली में दर्द हो रहा है, और रात से दर्द हो रहा है। गई हूँ प्रजापति के पास तो दवा ववा दिला के लाई हूँ 60 रुपये का मैं। फिर उसको बोला एक्सरा कराने, बोला मैं लिख के देता हूँ भाभी एक्सरा कराओ उसका। मैं बोली मैं अब सर अभी तो पैसा है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से अभी एक्सरा कराऊंगी उसका। तो बोले तो एक्सरा तो कराना ही पड़ेगा तुमको। Across cities, sanitation struggles deepen urban inequalities. It is seen globally that urban garbage grounds and processing plants are often located near predominantly marginalized and lower income communities. While researching for this story, I discovered a shocking fact. Life expectancy is under 40 years in Govandi slum, which is situated close to the Deonar dumping ground, where city's entire garbage is dumped. I met with Dr. Prajapati to discuss how it impacts the well-being of its 1 million residents. आपने बहुत सही सुना है, यहाँ पे जो उम्र है लोगों की घट रही है और ये 40 के आसपास पहुँच गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो मुख्य कारण है उसमें से डंपिंग भी आता है, और डंपिंग में जो गैसेस निकलती हैं खासकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। और लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसमें साथ साथ नाइट्रोजन और अमोनिया और उसके साथ साथ सल्फाइड, ये गैसेस लंग्स के लिए बहुत ख़राब होती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे पेशेंट जो मिलेंगे आपको अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, सीपीडी, ये सब पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। और इसकी वजह से लाइफ का जो डेथ रेशियो है वो बहुत बढ़ रहा है, मतलब एटलीस्ट 40 के आसपास पहुँच चुका है अभी। गोंडी के एरिया में देवनार डंपिंग ग्राउंड 1927 से यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बनने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाकर बसा दिए गए कि जो कि आउटसाइड मतलब एक सिटी में और एक बड़े दूसरे एरिया में वो सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लाने की वजह से हम ये इलाके को, इस एरिया को हम ऐसा समझते हैं कि मतलब ये एक तरीके का हॉटस्पॉट बना दिया गया है कि हर चीज़ों को, कोई भी चीज़ अगर इनको इम्प्लीमेंट करनी होती है, स्टार्टअप करनी होती है, तो एज अ टेस्टिंग बेसिस पे वो लोग गोंडी के अंदर ही लाकर उसको बसाते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर सक्सेस हुआ या अगर उसमें कुछ फेलियर आया तो फिर उसको उस तरीके से वो लोग रीलोकेट करना या उसको फिर शट डाउन करना, वो उसके बाद का डिसीजन होता है। गैसेस जो निकलती हैं वो गैसेस से ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा अफेक्शन होता है, और अफेक्ट ऐसा होता है कि उनको कम उम्र में ही आपको सीओपीडी मिलेगा, आपको ब्रोंकोस्पाज्म मिलेगा, आपको निमोनिया मिलेगा, ये सब पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं।
तकरीबन 8 साल पहले जहाना शेख करके मेरे पास आई थी। उनके एक बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, तो उसके बाद उसका लास्ट स्टेज था ट्यूबरकुलोसिस का और डेथ हो गई उनकी। तो आपको लगा था कि आप बचा पाएंगे? कुछ नहीं मैम, डॉक्टर लोग भी जवाब दे दिए थे। उसके लिए तो बहुत, मेरे घर वाले भी और मेरा बस माँ भाई लोग भी, मैं भी बहुत रोई हूँ मेरे बच्ची के लिए। यहाँ तक मैं जनाजा उठने नहीं दे रही थी, पकड़ के बैठ गई थी। वही सोचते मैम कि क्या करेंगे बच्ची लोग के लिए, क्या करते नहीं करते, क्या करेंगे अकेला इंसान, कहाँ से लाएंगे इतना इलाज कराने पैसा, ये वो। इसके लिए मैं सरकारी में लेके जाती थी, सरकारी से दौड़ भाग करके काम 2-2 3 छुट्टी मारती थी मैं काम वाले लोग सब चिल्लाते थे कि इतना छुट्टी क्यों मार रहे, सब चिल्लाते थे। ये एक पट्टा ऐसा है मैम कि ये पट्टा है ना, ये बहुत अछूता हुआ है। सरकार ने भी इसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारी जो लोकल बॉडी है इस तरीके की पार्शियलिटी करती है कि वो पैसे तो बीएमसी जो इस लोकल बॉडी है कि करोड़ों हर साल बीएमसी 50,000 से भी ज़्यादा करोड़ पैसे इन्वेस्ट करती है यहाँ के चीज़ों को डेवलप करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो सिर्फ पैसे जो है कि पेपर पर रहते हैं, कि ज़मीन पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं और ना ही वो चीज़ बनती है। Metro cities like Mumbai are fragmented spatially and economically, deepening the existing inequalities between the rich and poor living in the city. These inequalities manifest not only in disconnected infrastructure such as sewer systems or water supply, but also in formulation of policies, legal regulations, governmental investments, expenditure decisions, and the overall economic evolution of the city. गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं, गरीबों अपना काम कर कर के परेशान हो जाए मगर कुछ नहीं हुआ। मेहनत कर रही बच्चे लोग के लिए, मैम क्या बोलूं कि बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को पालना है, अपना रूम का भाड़ा है, लाइट बिल है, सब देना है अपने को, तो क्या करूं। तो आप क्या सोच के आए थे मुंबई की? कि जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ कुछ नहीं हुआ। जब हमेशा हाथ खाली रहा, हमेशा हाथ खाली। सोचते कि हम लोग का आगे चल के घर हो जाए, खुद का जमीन हो जाए, कुछ नहीं होता मैम। सोचा चीज कुछ होता ही नहीं है। The rich-poor divide is certainly deepened by how our cities are imagined and governed. And in Mumbai, that divide is increasing day by day. So tackling sanitation, poverty and inequality isn't just about better toilets. It's a much larger question of the right to city life.